Assalamualaikum dear students, I am here to deliver first online lecture for students of second year. Hope this video reaches you in good health and spirit. In first year we studied book 1 and book 3. Now in second year we will study book 2 and book 4. Book 2 includes modern prose and heroes. The first lesson of this book is The Dying Sun. The lesson has been written by Sir James Dean, who was an astronomer, physicist and mathematician. लेसन स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहूँगी। फर्स्ट ईयर में हम लेसन्स की ट्रांसलेशन भी प्रिपेयर करते थे फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन सेकेंड ईयर के पेपर में लेसन्स की ट्रांसलेशन नहीं आती, तो यहाँ पर आप सिनोनिम्स और क्वेश्चन आंसर्स पर फोकस करें। A few stars are known which are hardly bigger than the earth, but most of them are so large that hundreds of thousands of earths could be packed inside each and leave room to spare. Here and there we find an immense star large enough to contain millions and millions of earths. इस लाइन में क्या बात की गई है कि चंद सितारों के बारे में मालूम है जो ज़मीन से बामुश्किल बड़े हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर इतने बड़े हैं कि हर एक में लाखों ज़मीनें समोई जा सकती हैं और फिर भी गुंजाइश बाकी रह जाती है। And the total number of stars in the universe is probably something like the total number of grains of sand on all the seashores of the world. Such is the littleness of our home in space when measured up against the total substance of the universe. इन लाइन्स में क्या बात की गई है? इन लाइन्स में कहा गया है कि कायनात में सितारों की कुल तादाद गालिबन दुनिया के तमाम समुद्री साहिलों पर रेत के ज़रात की कुल तादाद की तरह है। क्या मतलब हुआ कि हमारी ज़मीन इतनी छोटी है कि जब कायनात की कुल हजम के मुकाबले में इसको मापा जाता है तो हमें पता चलता है ये कुछ भी नहीं है। नीचे जो पिक्चर्स दी गई हैं आप उसमें देखें, साइज कंपैरिजन है स्टार्स का कि हर स्टार जो आ रहा है वो पहले वाले स्टार से ज़्यादा बड़ा है। These millions of stars are wandering about in space. A few form groups which journey in company, but most of them travel alone. And they travel through a universe so immense that it is very, very rare event indeed for one star to come anywhere near to another. इन लाइन्स में ये बताया गया है कि बहुत सारे लाखों करोड़ों सितारे खला में इधर उधर गर्दिश कर रहे हैं और चंद सितारे ग्रोह तश्कील देते हैं जो इकट्ठे सफ़र करते हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर तन्हाई में सफ़र करते हैं। और ये एक ऐसी कायनात है जो इतनी वसी है कि किसी भी सितारे का कहीं भी किसी दूसरे के करीब आना एक इंतहाई नायाब वाक़या होगा। For the most part, each star makes its voyage in complete loneliness, like a ship on an empty ocean. In a scale model in which the stars are ships, the average ship will be well over 1,000,000 miles from nearest neighbor. From this, it is easy to understand why a star seldom finds another anywhere near it. इन लाइन्स में यह बताया गया है कि एक सितारा कहीं भी किसी दूसरे सितारे को शाज़ो नादिर क्यों करीब पाता है। इस वजह से कि जहाज़ की तरह ये सितारे मुकम्मल तन्हाई में सफ़र करते हैं, और अगर हम इस पैमाने को नमूना करार देते हैं जिसमें सितारों को बहरी जहाज़ समझा जाए और वो समंदर में सफ़र कर रहे हैं, तो हर जहाज़ अपने करीब तरीन हमसाये से 10 लाख मील से भी ज़्यादा दूर होगा। Believe, however, that some 2,000 million years ago this rare event took place and that another star wandering blindly through space happened to come near the sun. Just as the sun and moon raise tides on the earth, so this second star must have raised tides on the surface of sun. But they would be very different from the little tides which the small mass of moon raises in our oceans. An immense tidal wave must have travelled over the surface of the sun, at last forming a mountain so high that we can hardly imagine it. इसमें बात की गई है कि अर्थ की क्रिएशन कैसे हुई। राइटर कहता है कि कोई 2 अरब साल पहले ये गैर मामूली वाक़या रोनमा हुआ। कौन सा वाक़या कि एक सितारा खला में अंधाधुंध गर्दिश करते हुए सूरज के करीब आ गया, मतलब 2 सितारे पास आ गए, और इस तरह सूरज और चांद ज़मीन पर मदजज़र पैदा करते हैं। इस तरह दूसरे सितारे ने सूरज की सतह पर लहरें पैदा की, लेकिन ये लहरों की जो नौइयत थी उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी जो चांद की वजह से हमारे समुद्रों में पैदा होती हैं। और इस तारे की कशिश की वजह से एक बड़ी मौत सूरज की सतह पर हरकत में आई, जिसने इतने ऊंचे पहाड़ का रूप ढा लिया जिसको हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते।
As the cause of the disturbance came nearer and nearer, the mountain would rise higher and higher, and before the second star began to move away again, its tidal pull had become so powerful that this mountain was torn to pieces and threw off small parts of itself into space. These small pieces have been going round the sun ever since. They are the planets, great and small, of which our Earth is one. जैसे ही ये सारा करीब से करीब तर होता गया, वो जो पहाड़ था बड़ा होता गया और इससे कबल के दूसरा सारा सूरज से दूर होता, उसकी कशिश शकल इतनी ज्यादा थी कि पहाड़ जो था, जो बन रहा था सूरज की सतह पर, वो टुकड़े टुकड़े हो गया। ये जो टुकड़े थे खला में दूर तक फेंक दिए। और लेकिन सूरज का ग्रेविटेशनल पुल इतना था कि अब ये जो टुकड़े हैं वो सूरज की गर्दिश कर रहे हैं और इनको सियारे कहा जाता है। इनमें से कुछ छोटे हैं और कुछ बड़े हैं। और हमारी जो ज़मीन है जहाँ पर हम रहते हैं, ये भी उन्हीं टुकड़ों में से एक सियारा है। नेक्स्ट पैराग्राफ को समझते हैं। The sun and the other stars we see in the sky are all extremely hot, far too hot for life to exist on them. So also, no doubt, were the pieces of the sun when they were first thrown off. Gradually they become cooler until now they have very little heat of their own left, their warmth coming almost entirely from the radiation which the sun pours down on them. In course of time, one of these cooling pieces gave birth to life. We do not know how, when, or why this happened. लास्ट पैराग्राफ में बात हो रही थी कि अर्थ की क्रिएशन कैसे हुई। इस पैराग्राफ में बात हो रही है कि लाइफ कैसे वजूद में आई। हम सबको पता है कि सूरज और जो दूसरे तारे जो हम आसमान पर देखते हैं इंतहाई गर्म है, इतने गर्म हैं कि इन पर जिंदगी वजूद में नहीं आ सकती। और बेशक सूरज के वो टुकड़े जो उस तारे ने दूर फेंक दिए थे वो भी उतने ही गर्म थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ठंडे होते गए, यहाँ तक कि उनके पास अपनी जो हीट थी, अपनी जो हरारत थी, वो बिल्कुल भी ना बची और उनकी जो तपश थी वो मुकम्मल तौर पर उस शारेजी से आने लगी जो सूरज उन पर बरसाता था। और काफ़ी टाइम गुजरने के बाद इन्हीं सर्द पड़ते हुए टुकड़ों में से वो जो टुकड़े जिनको हम प्लैनेट्स कह रहे हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पर, उनमें से एक ने ज़िंदगी को जन्म दिया। लेकिन हम नहीं जानते कि ये कैसे, कब और क्यों का रोनमा हुआ। It started in simple organisms whose living power consisted chiefly in their being able to reproduce themselves before dying. But from these humble beginnings came a stream of life which, growing ever more and more complex, has in the end produced beings whose lives are largely centered in their feelings and ambitions, their sense of beauty, and their religions in which lie their highest hopes and noblest desires. जिंदगी जो है सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की तरह क्रिएशन में आई। इन लाइंस में ये कहा जा रहा है कि जिंदगी सादा से नामियाती अजसाम की सूरत शुरू हुई। पहले क्या थी, पहले जो ऑर्गेनिज्म्स थे उनमें जिंदा रहने की इस्तेदाद इतनी थी कि वह मरने से पहले अपने जैसे अजसाम दोबारा पैदा कर लेते थे, मतलब रिप्रोडक्शन की सलाहियत मौजूद थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन होता गया और उस एवोल्यूशन की वजह से ये जो मरहला था जिंदगी के वजूद में आने का, ये पेचीदा होता गया, कॉम्प्लेक्स होता गया और ऐसे वजूद फिर पैदा हुए जिनकी जिंदगियों का जो मरकज था वो उनकी अपनी ख्वाहिशात थी, अपने एहसासात थे। उम्मीद है आप सबको यहाँ तक समझ आ गई होगी। जो रिमेनिंग चैप्टर है वह हम कल स्टडी करेंगे। आपकी एक्सरसाइज के जो फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं पैराग्राफ से रिलेटेड हैं, उनको याद कर लीजिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।